नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी एनटीए परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और सीक्वेंस वाइज हर ईयर के क्वेश्चंस को आपके साथ करते चल रहे हैं। और कल हम लोगों ने शिफ्ट 1 के बारे में देखे थे। आज हम लोग शिफ्ट 2 देखेंगे। जून 2021 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र है। चलिए साथ बने रहिए, चलते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जेआरए परीक्षा दिसंबर 2020 जून 2021 या जून 2021 इतिहास व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। परीक्षा तिथि 29/11/2021 का शिफ्ट 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेचर टू द एविडेंस फॉर एसोसिएटिंग चंद्रगुप्त मौर्य विथ भद्रबाहु? तो व्हाट इज द आंसर? न्यूमिस्मेटिक, Chinese testimony, early historic, iconographic, not epigraphic. Epigraphic only. Epigraphic is the right answer for Maurya, Chandragupta Maurya. Associating. Now question number 2. The technique Siyahi Kalam or Neem Kalam was brought to India by the painters from which the following regions. चलिए हिंदी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सियाही कलम या नीम कलम तकनीक निम्नलिखित में से चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई। ट्रांसऑक्सियाना के द्वारा ये सियाही कलम भारत लाई गई थी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अमिताभ पद्मपाणि, अक्षोभ्य वज्रपाणि, बैरोचना समंतभद्रा एंड अमोघ सिद्धि विश्वपाणि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन किससे मैच हैं। अमिताभ पद्मपाणि, अक्षोभ्य वज्रपाणि, बैरोचन समंतभद्र, अमोघ सिद्धि विश्वपाणि। प्रश्न 4 में आइए। 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की थी? ताराबाई शिंदे। किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने। From among the following statements regarding non-cooperation movement, which are correct? Under the non-cooperation, Gandhi urged the people not to cooperate with an unjust and hence an evil system. By describing the British India administration system as an civil evil, Gandhi removed the spell of fear of the terror of law from the hearts of the people. Option C, under non-cooperation, Gandhi urged the people to break the civil and criminal laws. ब्रेक तो कभी नहीं चाहते थे गांधी जी को कोई लॉ, तो ये गलत है। Gandhi urged the people to fearlessly go to prisons which we termed as His Majesty Hotel. तो ऐसा बोलते थे कि आप लोग खुशी से जेल जाइए और भयभीत निडर होकर जेल जाइए और देश को आज़ाद होने में मदद कीजिए। तो ए, बी और डी सही है। Question number 6. On the island of Java in southern Asia, the first Indian settlement were set up in the 1st century AD. Right है। Indian political power was however established only in the 3rd century AD. ये सही नहीं है। According to a Buddhist travel, it was Brahminical religions that was prevalent in the 5th century AD. ये सही है। The Pallavas had established their suzerainty by the 4th century AD. Choose the correct option. डी सही नहीं है। तो ए और सी सही है, बाद बाकी बी और डी सही नहीं है। The city of Burhanpur was established by Nasir Khan. Nasir Khan, Faruqa dynasty of Khandesh. Faruqa dynasty of Khandesh. Which of the following crops do not find mention in the Ain-e-Akbari in any of the Dastar circle? coffee,
tea, tobacco. Coffee, tea and tobacco. Question 9. Which of the following statements are true about Panchashil? Nehru used. Which of the following statements are true about Panchashil? Option A. Nehru used the term in honor of the US President in September 1954. That's not right. The Panchashil principles were incorporated in a United Nations General Assembly resolutions presented by India, Yugoslavia and Sweden. This is correct. Burma, Indonesia did not support the idea of Panchashil. That's not correct. The policy of non-alignment is a direct consequence of the principles of Panchashil. That's correct. Option E. Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai signed the Panchashil Agreement in 1954. So B, D and E is the correct option. Question 10. Regarding the protections of routes under Mughal administrations, which of the following statements are correct? The protections of the routes was regarded as one of the foremost duties of the administration. That's correct. The organizers of the caravans and the series of the Tandaus of Banjaras who went armed and possibly of a flotilla in the rivers was mainly assigned to meet the threat of the robbery on the routes. And that's correct. Under Mughal Empire, the officer in whose jurisdictions robbery or theft occurred had to recover the goods or had to compensate the victims himself. That's correct. The officer met these obligations by pursuing a policy of ferocious reprisals and sacking the suspected villages. All options are correct. Question 11. Arrange the establishment of the following institutions chronologically starting from the earliest. So what is the chronological order? Let's see. DCBA. So first D is पंडित रामाबाई का शारदा सदन, देन माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता का महाकाली पाठशाला, देन बी केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम, आफ्टर लास्ट वन रामाबाई रानाडे का सेवा सदन. Chronologically arrange the following uprising starting from the earliest. CADB सन्यासी रेडेलियन, सन्यासी विद्रोह, रेडेलियन नहीं होगा, रेबेलियन होगा. सन्यासी विद्रोह, फिर ओडिसी जमींदार विद्रोह, उसके बाद भील विद्रोह, फिर सतारा विद्रोह. तो पहले सन्यासी विद्रोह, फिर ओडिसी जमींदार विद्रोह, फिर सतारा विद्रोह, फिर भील विद्रोह, फिर सतारा विद्रोह. Who started Rajamundra Social Reforms Association in 1878? K. Veersalingam Pantalu. K. Veersalingam Pantalu. नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे पर क्वेश्चन जानना और ऑप्शन जानना हमें बेहद ज़रूरी है. प्रतिमोक्ष मीन्स मोनेस्टिक रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट ऑर्डर. प्रतिमोक्ष मीन्स monastic rules of the Buddhist order. Arrange chronologically the following poets who were known as the authors of inscriptions. BCAD. B. Ravi Kirti, C. Ravi Shanti, then A. Harisena and D. Vatsabhatti. तो रवि कीर्ति, रवि शांति, हरिसेना, वत्स भट्टी. क्वेश्चन 16 मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. महेंद्रपाल, गुर्जार प्रतिहारा, नानुका चंदेला, पकिराजा
Paramara or Govinda Rashtrakuta. Govinda Rashtrakuta, you have to know this option D1 and 3 is the right answer. And C4, C Bakapiraja is Paramara. Question 17. The story of Sunahapa, in which our father is described as spelling his son, occur in Atriya Brahmana, Saptatha Brahmana, Taittiriya Brahmana, Tandya Brahmana. Atriya Brahmana. The Hyderabadi administrative system in the late 18th century can be identified as a patron-client relationship because the Nizam displayed his allegiance to the Mughal emperor and regularly paid tributes. The local Hindu landowners were supported by the Nizam and they were forced to pay him tributes. The semi-autonomous rulers of the Hyderabad state were allowed to govern on their own in return for an annual tribute to the Nizam and the Mughals. हैदराबाद राज्य के अर्धस्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था. Question 19. The seventh pillar effect of King Ashoka occurs on Delhi. Topra pillar. Seventh pillar edict of King Ashoka occurs on Delhi. Topra pillar. देखिए ऑप्शंस पे आपका पकड़ होनी चाहिए और ऑप्शंस आप जान गए तो समझिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. और विस्तार से पढ़ने के लिए वक्त चाहिए तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, पर अभी एग्ज़ाम के ज़रिए से चलते हैं. चलिए 12 मिनट में 20वां प्रश्न करने जा रहे हैं हम. अरेंज द फॉलोइंग राइटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर CDAB. यास्क, पतंजलि, सत्यनारायण, संध्याकर, नंदी. यास्क, पतंजलि, सत्यनारायण, संध्याकर, नंदी. Who of the following are the well-known salves of early Indian? एटिकल, काडवर्को, तिरुमुलर. कौन परामी भारत के जाने माने शिव थे? एटिकल, काडवर्को और तिरुमुलर. ये दो नाम याद रखिए. रिगार्डिंग डेविस्टन वन मेजरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट. ये सारे वे प्रश्न हैं जो 2021 के नवंबर शिफ्ट 2 में आए थे. तो आप देखिए इस क्वेश्चन को. The Devistani I Manjab refers to the compositions of Guru Nanak as replete with paradise of God and ethical instructions. The author of Devistan refers to the Adi Granth compiled by Guru Arjan. The author of Devistan refers to the practice of Sikhs to request the entire congregations to pray for the fulfillment of an individual's wish. The Devistan contains extremely useful information on the organization of the Sikh community. A, C, D are the correct options. Question 323. Which of the following statements are correct with regard to Asian maritime trade? एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 15वीं शताब्दी में चीन के बड़े जंग से मलक्का के पश्चिमी के समुद्र से पीछे हट गए. इसमें हुए रिक्त स्थानों को गुजराती व्यापारियों के जहाज़ों द्वारा भरा गया. M.N. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के रुचि नहीं थे क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम व्यापारिक संपर्क था. तो A, B और C सही है. Question 24. Which of the following statements are not true? में से कौन सा 1857 के विद्रोह, हिंदी वाला देखिए, 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? 1857 के विद्रोह के समय जिन सिपाहियों ने ब्रितानियों पर हमला किया उनमें से अधिकतर दलित थे. ये सही नहीं है. लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किया था. ये भी सही नहीं है.
दलित समुदायों के 3000 विद्रोहियों ने छात्रा कस्बे को घेर लिया, ये भी सही नहीं है। तो क्या सही है? झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है, ये सही है। प्रो बद्रीनारायण ने 1857 में दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया था, ये भी सही है। तो 2 सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन सही नहीं है जो कि इसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ? बॉम्बे। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपया का वजन था 3, 180 ट्रॉय। 180 ट्रॉय औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपये का वजन। Given is below are statements. Statement 1, according to Sankhya philosophy, there are 25 basic principles of tattvas, the first of which is the Prakriti and the second which is Purusha. Statement 2, the basic text of the Vedanta philosophical system is the Brahma Sutra of Badrayana. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Question 28. Given below are statements. नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, तंजावुर का विश्व मंदिर से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो ग्रेनाइट का कथन पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन थोड़ा मैं जल्दी तेज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है चीज़ें, और ऑप्शंस को आपको दिमाग में बैठाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ब्रितानियों की जीत और फलस्वरूप औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रसार ने देशी संस्कृति और संस्थाओं के आत्मनिरीक्षण को अनिवार्य बना दिया। 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति के समय हुआ था, उनके द्वारा नहीं हुआ था। सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी थी। परलौकिकता और मोक्ष के विचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा था, ये सही नहीं है। डॉक्टर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है, यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता तो वह रूढ़िवादी हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, डी सही है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मुगल आक्रमण, संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तैर बहादुर, मोइजुद्दीन बहरम शाह, ताराम शिरीन, मोहम्मद तुगलक, सिर मुगल गियासुद्दीन तुगलक, कुतलक ख्वाजा अलाउद्दीन खलजी। तो कुतलक ख्वाजा अलाउद्दीन खलजी याद रखिए, और तैर बहादुर मोइजुद्दीन बहरम शाह याद रखिए, हो जाएगा। A2 और D1 याद रहने से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बी और डी सही है, सी सही नहीं है। अजंता चित्रकला में घुड़सवार के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं, ये सही है। अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था, ये भी सही है। लोहे के रकाब 12वीं सदी के चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं, ये सही नहीं है। सातवीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था, ये सही है। प्रश्न 32, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए। विरूपाक्ष पट्टदकल, तीनथल एलोरा, केशव मंदिर सोमनाथपुर, नागेश्वर स्वामी कुंभकोणम। विरूपाक्ष पट्टदकल, तीनथल एलोरा, केशव मंदिर सोमनाथपुर, नागेश्वर स्वामी कुंभकोणम।
मेरे बताए गए लेक्चर के बाद अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं तो ये सारे वर्ड आपके दिमाग में रहेंगे और आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबलिंगर इनमें से क्या था? चोल राजाओं की सम्मान सूचक उपाधि, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहद रूप से फैला हुआ व्यापारिक का संघ, खगोल शास्त्र की एक पुस्तक, चिकित्सा का ग्रंथ। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहद रूप में फैला हुआ व्यापारिकों का संघ। प्रश्न 34 पे आते हैं। शेख अब्दुल कुदूस गंगोही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सी और डी। शेख अब्दुल गंगोही चिश्ती सिलसिले की साबिरी शाखा के प्रमुख सूफी शैखों में से एक थे। बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेख को अपनी सेना को पानीपत में कर आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया। ये सही है। इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के बाद अब्दुल कुदुम ने मुगल के हाथों पड़ गए। उन्हें अनेक बेटे और नौकर के साथ शेख की लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वालों को घोड़े की काठी से बांधकर पैदल सेना पानीपत से दिल्ली से लाया गया। केवल ए, सी और डी। बी सही नहीं है। उनसे संबंधित किस्सों का संकलन उनके निधन के काफ़ी बाद उनके बेटे रुकन अल दीन कुदूस तैयार किया गया है। सही नहीं है। Which of the following is the probable date of the Periplus Maris Erythraci, 1st and 2nd century AD? तो पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रेसी जो कि इंग्लिश नाम दिख रहे हैं, 1st सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी, 100 से 200वीं शताब्दी। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियों हल लिए हुए बनी है? बलराम, कृष्ण जी के भैया, दाऊ भैया। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा के शिक्षा की व्यवस्था पर तैयार हुए 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? विलियम एडम। 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? विलियम एडम। इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के बीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती हैं? बत्तेलुथुस लिपि, पशुओं की बाघों के हमलों में रक्षा करना, लुटेरों से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्ते का स्मारक, पशुओं और फसलों की उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करना। पशुओं और फसलों की उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करना, ये नहीं पाई जाती हैं। चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ निम्न में से किस फारसी कृति में मिलता है? जवामी उल हिकायत। जामी उल हिकायत। प्रश्न 40। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। इनमें छकड़ों गाड़ियों को लोहे के चेनों से बांध कर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगाली दस्ते तुलुगुमा मुहैया कराने जैसी युक्तियाँ शामिल थी। बाबर ने युक्तियाँ कहाँ से ली थी? ऑटोमन और उज़्बेकों से। ऑटोमन और उज़्बेकों से। प्रश्न 41। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त होता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक से अधिक अर्थ हो सकता है। कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्रंथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। ये भी सही है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सैन्य टुकड़ी थी। ये भी सही है। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति को सभा थी। ये सही नहीं है। ये बी और सी सही है। प्रश्न 43 पे आइए। देखिए 24 मिनट में हम लोग 43वें प्रश्न पे चल रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ वैदिक नॉलेज एज ए वेदांगा, सही है। वॉज नॉन एज ए ज्योतिष, ये भी सही है। लिस्टेड द मून एज ए प्लानेट, ये भी सही है।
Did not list the Uranus as one of the planets. Did not list the Uranus as one of the planets. ये भी सही है, ए बी सी और डी सही है। प्रश्न 44, प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाजा, नागार्जुन, एलिफेंटा, कार्ले। डी ए बी सी। कार्ले, भाजा, नागार्जुन, एलिफेंटा। प्रश्न 45, प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानघरों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? जॉन मार्शल। तो मेसोपोटामिया या प्रागैतिहासिक मिस्र, इसमें वो बोल रहे हैं कौन? जॉन मार्शल। प्रश्न 46, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। प्रश्न 46, प्रधान संस्कृति टीलों में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। कई प्राकृतिक संस्कृति का दर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ये सही है, 2 नंबर। केवल एक संस्कृति प्रधान, केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है, ये नहीं हो। एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है, ये भी सही नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न 48 देखिए, 1886 में भारतीयों पर कौन सा अस्थायी रूप से लगा दिया गया? कौन सा कर अस्थायी रूप से लगा दिया गया? आयकर। उनचास नंबर, मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम अनुसार रखिए जहाँ सही कालक्रम अनुसार क्या है? सी नंबर, 3 नंबर, CADB। गुलबदन बेगम, फिर जहारा बेगम, फिर रोशन आरा बेगम, फिर जबनुसा। तो गुलबदन, जहारा, रोशन, जबनुसा। प्रश्न 50 पे आइए, निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गोलकुंडा, DCBA, चस्टन, रुद्रदामन, मेनेंडर, गोंडोफर्निस। DCBA, चस्टन, रुद्रदामन, मेनेंडर, गोंडोफर्निस। दिस इज द राइट ऑप्शन। 51 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 का मिलन कीजिए। चाहकान, कुआं खोदने वाला, ये शब्द है और यह अर्थ है चाहकान, कुआं खोदने वाला। सकिया, रहट, अहंगार, लुहार, सुर्खी कोब, ईट कूदने वाला। तो ये तो आसान है। उस समय में इन सब लोगों को क्या कहा जाता था वही नाम दिए हुए हैं। तो चाहकान, कुआं खोदने वाला याद रखिएगा। प्रश्न 52, भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से महिला अधिकारों की रक्षा हुई? सही नहीं है। वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई? ये सही है। हिंदू कोड बिल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ? नहीं। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श कायम रहे? नहीं। ऑप्शन 2 ओनली। 53, अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को काल क्रमानुसार रखिए। पहली बार जजिया की समाप्ति, तीर्थंकर माफ किया जाना, चित्तौड़ का फतहनामा जारी करे, युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदार को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध। DBAC, पहले D, फिर B, फिर A, फिर C। युद्धबंदियों की पत्नियों, फिर तीर्थंकर माफ किया जाना, फिर पहली बार जजिया की समाप्ति, फिर चित्तौड़। प्रश्न 54, इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? उच्च वंशीय, गैर तुर्की विदेशी। उच्च वंशीय, गैर तुर्की विदेशी थे।
Which one of the following statements are true about the liberalizations of Indian economy? Manmohan Singh argued for a less controlled economy as early as 1960s. Indira Gandhi was against liberalizations measures and increased restrictions on large monopoly enterprises. B सही नहीं है. C. The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was abolished in the course of liberalizations. A and C is the correct. Agriculture, after recording a growth in the 1991 to 92, sharply fell downwards till 1996 to 1997. A और C सही है. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एसर्शन से, दूसरा आकारण है के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण के रूप में. अभिकथन: गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को देकर ज़्यादा चिंतित थे. गांधी किसी प्रणाली को निर्माता नहीं थे. मानव जीवन के प्रति उनका एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता हो. ये सही नहीं है लेकिन आर सही है. ये जो है सही नहीं है, आर सही है. Which of the following statements are correct about ढाई दिन का झोपड़ा? ढाई दिन का झोपड़ा. It was the first mosque built by the Turks. ये गलत है. An inscription on the dome records the name of Abu Bakr ibn Ahmad Khalu al-Harwai as supervisors of its constructions. ये right है. Inscriptions on the ark refers to the constructions under the supervision of the Ahmad ibn Muhammad al-Arid. ये भी सही है. And inscriptions on the central arc of the screen residence correspond to the Iltutmish. ये भी सही है. तो ऑप्शन 3 सही है, B, C, D. 58 मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2. सुशील कुमार दे हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th century. शाह नवाज खान INA and its नेताजी. B.H. Baden Powell लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. Emily C. Crown, Har Dayal, Hindu Revolutions and Rationalist. Who is regarded as a future Buddha in Buddhist tradition? Maitreya. The standard unit of the money of the Vijayanagara kingdom mentioned as a pagoda in later European accounts was referred to in the inscription as Bara Gadyan Hun. Bada Gadyan and Hun. Phanam is not answer. A, B and C in the right. What did Kudpa, Kar and Samba Pershanam denote in the context of agriculture? Production in South India. Two main seasons of rice cultivations named after the variety of rice cultivation during the summer and winter season. Who wrote Portfolio Capitalist in the early colonial rule in India? An intermediary merchants class that came to influence the political process. एक बिचौलिया वणिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा. ये सही है. According to Maurice D. Morris, deindustrializations in 19th century India was a myth बिकॉज मैरिज डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरौदीकरण एक मिथक है क्योंकि हस्त उद्योगों के पतन का सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है. दैट्स राइट, ऑप्शन नहीं. अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? कासिम खान. Major James Rennie's 1783 map of the Hindustan was an instance of European scientific mapping practices aided by Indian methods. भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग. From the amongst the following statements regarding the Mahendralal Sircar's contributions to science, which ones are correct? Sircar set out his national agenda, namely to build a culture of science in India through its practice and popularizations. That's correct. For Sircar, science was the metaphor of a nationalism. That's correct. Sircar stressed that a political nationalism has no meaning without science.
as its guiding spirit. That's correct. Sirkar, much like his contemporary Bankim Chandra, did not ascribe to Europe a rational, progressive culture while portraying Asa as suffering from a regressive. That's correct. ABC is the correct options. Question number 67. Which of the first statements regarding historiography are correct? इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लियोपोल्ड वॉन रॉके का इतिहास दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके इन दो विचारों से मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। वह कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि हगेल था जिसने कहा कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। ओसवाल्ड स्पेंगर का इतिहास दर्शन यूरोप का काल विभाजन प्राचीन मध्य और आधुनिक पर तीखे हमले के साथ शुरू ही होता है। R.G. कोलिंगवुड की राय में सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। A, B, C and D is the right option. 68. Who of the following persons was sharply critical of the practice of सती? इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? बाणभट्ट। 69. मिलान कीजिए। A4 मार्गरेट चैटर्जी, गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड, A.K. चैटर्जी। बस याद रखिएगा, मार्गरेट चैटर्जी, गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड्स। A4 बाद बाकी सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? गंगे मुखर्जी, गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कोशियंस। भिखू पारेख, गांधी जी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। एरिच एच एरेक्शंस, गांधी जी, ट्रूथ ऑन द ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है, शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी के समय में हुए थे और वे सुल्तान उनका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र के लोगों को उनके अद्भुत विश्वास है और उन्हें वे एक महान संत मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की रात को उनके मकबरे पर अमीर और गरीबों की सैलाब उमड़ पड़ जाती है। ये कौन थे? शेख अहमद मगरिबी। निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? गुफकराल, चिरांद, सरोतरु ये सही नहीं है और दवची हैंडलिंग ये भी सही नहीं है। गुफकरल और चिरांद सही है। ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही है? A, B and D। पाद टिप्पणी आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के विचारों विमर्श के लिए सुविधाजनक आधार बनता है जो पाठ का पूरक बनता है, स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्ध और वचनी बनाता है। संत गथ चरित्र में तोड़ मरोड़ के पीछे स्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता है। पाठ टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित है। इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वह झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। ऑप्शन A, B, D in the correct option. The Congress was critical of the cabinet mission scheme of 1946 because the cabinet mission had overlooked the need of the princely states to give elected representatives of the Constitutional Assembly. कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा में होने की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कबीर, परचई, अनंतदास, भक्तमाल, नाभादास, विज्ञान गीता, केशवदास, भक्त विजय, महीपति। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी जो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक वो सभी कर सके? फिरोज तुगलक।
निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ABCD। नीचे दो कथन देखे हैं, एक अभिकथन एक रूप में लिखता है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। औरंगजेब के काल में मृत वंशधारों की संपत्ति पर दावा मुतलबा अब तक सीमित था। सोलह सौ 91 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था। बोथ A and R करेक्ट ऑप्शन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और R A की सही व्याख्या है। दोनों सही है और राइट एक्सप्लेनेशन भी है, अच्छी बात है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। ब्रह्मयज्ञ वेदों को पढ़ना व पढ़ाना, भूतयज्ञ सभी प्राणियों की आहुति, देवयज्ञ अग्नि को आहुति, मनुष्य यज्ञ अतिथियों का सम्मान। ब्रह्मयज्ञ वेदों को पढ़ना व पढ़ाना, भूतयज्ञ सभी प्राणियों की आहुति, देवयज्ञ अग्नि को आहुति, मनुष्य यज्ञ अतिथियों को सम्मान। 79 A4। फ्रैंक एंकर स्मिथ, मीनिंग truth and reference in historical representation। Edward Said, culture and imperialism। C2। मिशेल फुको, फुको क्या है? डिसिप्लिन एंड फिनिश ऑफ द प्रिजन। EP थॉम्सन, कस्टम्स इन कॉमन। 80। फारसी स्रोत तज़किरा पीर हस्सू तेली और इसके लेखक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? द फैमिली मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स सूरत सिंह वेयर बाय प्रोफेशंस ट्रेडर्स। लेखक सूरत सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था, ये सही है। ये भी सही है। उन्हें शेख सितरुल्ला द्वारा तेली संत पीर हमसू के प्रमुख शेख कमाल के पास उनका शिष्य बनाने के लिए ले जाया गया, ये भी सही है। यह एक सूफी संप्रदाय था जो मलमतिया के नाम से जाना जाता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल किए जाते थे, ये भी सही है। प्रश्न 81। द वसवदत्ता एंड द रवणवदा। वसवदत्ता और रवणवध के रचयिता हैं सुबंधु और भट्टी। सुबंधु और भट्टी। निम्नलिखित कानून को उनके लागू होने की तारीख के कालक्रमानुसार रखें। सबसे पहले C, रेगुलेशन 6 विच डिक्लेयर्ड चाइल्ड सैक्रिफाइस टू द मर्डर। शिशु बलि का हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन 16, सबसे पहले ये हुआ था। फिर हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 17। उसके बाद A, भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडियन एक्ट 5। और उसके बाद B, ईसाई धर्मदाताओं के लिए उत्तराधिकारी का एक्ट 31। परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों में छूटों का उल्लेख इनमें से किसमें है? गौतमीपुत्र शतकर्णी का एक अभिलेख। गौतमीपुत्र शतकर्णी का एक अभिलेख। मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़ों पर अनुरेखन करके रेखाचित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? चरबा। क्या कहा जाता था? चरबा। जब शाहजादा मोहम्मद काम बख्शी ने उनका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया है, इसी ने तुम्हारे तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान करें, उदयपुरी बेगम।
मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? बम्मा पालासी राजा, बम्मा पालासी राजा। BDAC। निम्नलिखित चिश्ती सूफे को कालक्रम अनुसार रखिए। बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर डी शेख सफरुद्दीन गंज शकर, फिर ए शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर सी शेख नसीरुद्दीन चिराग। आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी बढ़ाकर देखने में और अच्छा लगेगा। आपकी इच्छा अनुसार चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऑप्शन दिमाग में बैठने चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना की थी? सरला देवी चौधुरानी। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की। प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे विवाह की दो प्रणालियाँ। मोक्ष के लिए योग पद्धति के 2 पद, ये गलत है। वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू, ये भी सही है। विवाह की 2 प्रणालियाँ, ए और सी सही है। 90 अभिकथन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपिकों और कैडेटों के प्रशंसा के उद्देश्य से हुई थी। कारण संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए समान हिंदू कानून संहिता बनाना था। ए और आर दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। अब आ जाइए पैसेज पढ़ेंगे, हिस्ट्री पैसेज लाइक इंग्लिश सीन आरसी पैसेज। तो चलिए पढ़ते हैं और इसके 5 प्रश्न आएंगे 90 to 95। रीड द फॉलोइंग पैसेज। 91 to 95 होना चाहिए था। एज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे लिखा पार्ट ध्यान से पढ़े और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का जवाब देते। स्टेट पुलिस अंडर अकबर फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड्स रेगुलर roughly down to 1575 and had thus often to accommodate the prejudices of theologians commanding much influence among Muslims. They often goaded him to be harsh and sectarian towards non-believers as well as the so-called heretics, according to Badauni. This phase also witnessed Akbar's lavishing much favor on the theologians in the form of land grants on the unprecedented scale. A majority of persons benefiting from this flood of the favors would obviously be Indian Muslim managing mosques and dargahs, mystic hospices in different places. One may even speculate that this attitude of placating the Aima functionaries of Islamic religious institutions was partly aimed at winning them away from the influences of the Afghan cities, whose until late years were their rulers. They were evidently regarded by Mughals during these years as their main potential opponents among the nobles or ashraf among the Muslim population. इंडियन मुस्लिम वेर आइडेंटिफाई। भारतीय मुसलमान को किस रूप में पहचाना जाता था? शेखजादा। अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफ़ी उदारता से धर्मचार्य को भू अनुदान दिया। इस भू अनुदान को कहते हैं सयूरगल। अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीन उसकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान करें। इक़्तिदार आलम खान। पूर्वाग्रह वाले धर्मचार्य किन लोगों के प्रति कठोर थे? संप्रदायवाद नहीं थी। सुन्नी। धर्मचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदाय नहीं थे? सुन्नी। निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों में से दिल जीतने के लिए एम्पाओ को भू अनुदान दिए गए? अफगान। नाउ अगेन पैसेज 96 to 100 क्वेश्चंस आर गिवन देयर।
Read the following passages and answer the questions given below. Indian national movement was most firmly and deeply rooted in understanding of the nature and character of colonial economic dominations and exploitations. 3. Names stand out who carried out the economic analysis of British rule during 1870 to 1905. Dadabhai Naoroji, the grand old man of India. Justice M.G. Ranade and Ramesh Chandra Dutt, a retired civil servant. These three leaders, along with C.B. Joshi, G.K. Gokhale, G. Subramaniam Iyer, Prithvi Chandra Ray, and the host of others raised basic questions regarding the nature and purpose of the British rule. For them, the essence of British imperialism law in a subordination of the Indian economy to the British economy. They were able to see that a colonization no longer functioned through crude tools of a plunder and the tribute and the mechanism, but operated through the disguised and complex mechanism of free trade and foreign capital investments by transforming India into a supplier of food, stuffs and raw material to the metropolis and the making India market for the metropolitan manufacturers. Since the 1840s, the British economic official had seen the investments of foreign capital along with law and order as the major instrument for the development of India. An argument the early Indian nationalism vehemently refuted. They argued that the instead of encouraging and argumentations Indian capital, foreign capital repressed and suppressed it, which led to the drain of a capital from India had and further strengthened the British hold over the Indian economy. They also highlighted the progressive decline and ruin of India traditional handicrafts in the interest of British manufacturers. The political consequences of such policies were no less harmful and which led to India's political subjugation. नाउ क्वेश्चन 96। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है क्योंकि क्वेश्चंस भी तो बहुत लंबे लंबे हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग 50 मिनट में टारगेट किए थे कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करेंगे और अंत में ही हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए करते हैं जल्द से। आफ्टर ईयर्स ऑफ हेजिटेशन विच ईयर द ड्रेन थ्योरी वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोक्लेम्ड दैट द फेमिन्स एंड द ग्रेट पॉवर्टी ऑफ इंडिया वेर ब्रॉट अबाउट बाय द ड्रेन और वेल्थ। विदाउट ब्रेक मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया है चीज़ें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर साथ बने रहने के लिए। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई वर्षों के संकोच के बाद निम्नलिखित में से स्वीकार कि इस वर्ष धन निकासी के सिद्धांत को आधिकारिक रूप में स्वीकार किया गया और यह घोषणा की कि भारत में अकाल और महागरीबी की धन की निकासी द्वारा लाई गई है 1896। क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड डेप्स टू इंडिया प्रस्तुत किया और वह धन निकासी ड्रेन के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे? डी. दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन के मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया? किसने? काशीनाथ त्रिम्बक तेलांग। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकारी थे और वे एक दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों प्रशासकों ने तर्क दिया कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का हाथ था? जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल। ये दोनों ने बताए थे ए एंड बी ओनली। जॉन स्टुअर्ट मिल और अल्फ्रेड मार्शल ने तर्क दिया कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटिश आर्थिक नीति प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों कानून व्यवस्था के साथ साथ विदेशी पूंजी के निवेश को भारत के विकास के लिए प्रमुख माना। स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 तक अर्थशास्त्री, दार्शनिक, इतिहासकार थे। वह उपनिवेशवादी एवं पूंजीवादी का समर्थक तथा ब्रिटिश आर्थिक नीति का पोषक था। अर्थशास्त्र का सिद्धांत 1948 से इसका प्रमुख अंग। देखना है कि कितना टाइम लग रहा है एक तो चीज़ बताने में। तो अल्फ्रेड मार्शल 1842 में 1900 में मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर अर्थशास्त्र की व्यवस्था की। इनका प्रमुख अंग ग्रंथ प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स 1890 भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीति के समर्थक थे। इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे थे ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन दिखे तो आप उसको राइट करके एग्जाम में चले आइए और फुल मार्क्स पा जाइए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद तो मेंस के लिए है ही टाइम, तो अच्छे से डिटेल से पढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आप अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए।